हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दयाल चंद पाठक। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय टीसीपी। सो चलिए शुरू करते हैं फिर एक नया टॉपिक, एक नया थॉट और एक नया ज्ञान जो कि इसके बाद हम सीख जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या टॉपिक है? Electric dipole. So today we will discuss about, we are going to start about discussion of electric dipole. Now what is the meaning of this? First board will ask define electric dipole. So आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, डाई यूज फॉर टू, पोल्स मीन्स इक्वल, opposite. You can take पोल्स मीन्स इक्वल एंड, जैसे आपने सुना है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो पोल्स का आप मतलब ले सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट, हमने ले लिया इक्वल एंड अपोजिट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मीन्स टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस, टू मीन्स दो, यह एक यह दो, पोल मीन्स इक्वल एंड अपोजिट। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, one is plus q, one is minus q. When two equal and opposite charges are kept at a small distance 2l, at a small distance 2l, this system is called electric dipole. So कैसे बोलते हैं electric dipole? When time मतलब two, pole मतलब equal and opposite, electric means charges. When two equal and opposite charges, both are q, one is plus q, one is minus q. When two equal and opposite charges are kept at a small distance 2l, this is called electric dipole. This is called electric dipole. Now question is there, sir, why you have taken the small distance 2l? आपने small distance 2l ही क्यों लिया? ये केवल इसलिए लिया जाता है ताकि जो डेरिवेशंस हम कर सकें वो प्रॉपर आए आपको, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। अगर आपसे केवल l लेंगे तो बहुत छोटा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.0002 समथिंग, इसको अगर 2l आपने लिया है तो जब आप सेंटर लेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल करेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, center of dipole, this is suppose the center of dipole. So if you will take L, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2। ये भी कितनी होगी? L/2। बॉटम में आ जाएगा, रेशियो में आएगा, तो इसलिए हम क्या लेते हैं 2L, ताकि जब सेंटर लेते हैं कितना हो गया? L, this is also L, yes or no? So this when two equal and opposite charges are kept at small distance 2L, this is called electric dipole. This system is called electric dipole. Have you seen this? The distance between two charges of dipole, the distance between two charges of dipole is called dipole length. What is this? Dipole length. So what is dipole length? Dipole length, how lengthy that dipole. So the distance between two charges of dipole, that is called dipole length. The distance between two charges of dipole is called dipole length. Now total charge of dipole, total charge of dipole. Now we know in a dipole there are two equal and opposite charge. In previous video we know that addition of charges is algebraic. So what will be the total? Plus q minus q, with sign we have to add them. Total charge of dipole will be 0. So this is very important question for board 1 marks. What is the total charge of any dipole? The total charge of any dipole will be 0. So this is called electric dipole. Now example, sir, where कहाँ दिखेंगे? सर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ दिखेंगे? सब जगह। देखिए, everything is made up of atoms. Atoms are form molecules. Yes or no? Atoms are form molecules in which there are two and more atoms. In every molecule will be maybe polar dipole or non-polar. तो मॉलिक्यूल जो होते हैं या तो डाइपोल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया HCl, एवरीबॉडी नो इन केमिस्ट्री HCl। इफ यू ब्रेक इट, क्या आता है? H प्लस Cl माइनस, देखिए प्लस एंड माइनस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो एग्जांपल HCl, H2O वाटर मॉलिक्यूल, H2O भी क्या है? डाइपोल है, एवरीबॉडी नो इन केमिस्ट्री। H, yes or no? H is positive, plus and 2 minus. This is one dipole and this is another dipole. Yes or no? So every molecule, most of molecules are formed
dipole, either it is polar or non-polar. Is it clear? So this is called electric dipole. Now next topic we will discuss about next is electric dipole moment. Same topic, electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंटेड बाय पी. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे? पी, कैपिटल पी से. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज डाइपोल? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट at a small distance 2l, this is called dipole, and this length is called dipole length. Now what is electric dipole moment? Electric dipole moment P equal to magnitude of any one charge. Both are equal, one is positive, one is negative, so only magnitude. Electric dipole moment is the product of magnitude of any one charge and distance between them. This is called electric dipole moment. So what is electric dipole moment? It is the product of magnitude of any one charge of dipole and distance between them. This is called electric dipole moment. P equal to Q into 2L, means you will not put the sign. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायपोल बना है -2 और +2 से और 10 मीटर की दूरी पर है, या 10 mm लिख लीजिए, मिलीमीटर, स्मॉल होनी चाहिए ना. सो व्हाट यू विल डू, डायपोल मोमेंट P होगा 2, सो यू विल नॉट टेक प्लस और माइनस, you will take only value, magnitude. So it is the product of magnitude of any one charge and distance between them. Now its unit is unit. Now what is the unit of Q? Q unit is coulomb into 2 is a number, L unit is meter. So what is its unit? Unit of dipole moment is coulomb into meter, coulomb into meter, and this dipole is vector quantity. कैसे क्वांटिटी है? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट हैव डायरेक्शन. इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी. ये कैसे क्वांटिटी? वेक्टर है, डायरेक्शन होगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गई हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चलता है? प्लस टू माइनस, माइनस प्लस के कारण आउटवर्ड एंड माइनस के कारण क्या होता है? इनवर्ड. सो प्लस टू माइनस, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डायपोल डायरेक्शन. माइनस टू प्लस, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होती है? इसकी डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज से कहां की ओर? माइनस चार्ज की, प्लस टू माइनस. इज इट क्लियर? सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? राइट, इट्स यूनिट, इट इज वेक्टर और स्केलर. इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव साइन ऑफ डायपोल टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑफ डायपोल टू पॉजिटिव चार्ज. इज इट क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट देखिए, everything of this universe that is called matter. Earlier also we have discussed about this all. Everything whatever in this universe that is called matter. Matter have how many forms? 5 forms: solid, liquid, gas, plasma or BEC, Bose-Einstein condensed state. Yes or no? Every state is collection of many small particles. These small particles are called atom. By combination of 2 and more atoms, what form? Molecules form. What form? Molecules form. This we have discussed in previous video. If you are not saying to go through it. Now 2 and more atoms will form one molecule. Is it clear? So everything of this universe, we can say that whatever in this universe, that is made up of molecules. That is made up of molecules. Whatever in this universe that is made up of molecules. Molecules are of 2 type. 2 तरह के molecules हैं. Number first, type of molecules. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. देखिए, एवरीथिंग जो कुछ इस यूनिवर्स में, एवरीथिंग व्हाटएवर इन दिस यूनिवर्स दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, देन these small particles are called atom. By the combination of atom, molecules are formed. Yes or no? And these molecules are 2 type. How many type of molecules? 2 type. Number first, polar molecules, and number second, non-polar molecules. Non-polar molecules, polar molecules and non-polar molecules. Now what is polar molecules? See, polar molecules. What are polar molecules? Those molecules in which
द पॉजिटिव सेंटर इज नॉट कोइंसाइड विथ नेगेटिव सेंटर। मतलब क्या है, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल बनाते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स विच कैन फॉर्म डाइपोल और देयर पॉजिटिव सेंटर is separate than their negative center. For example, suppose I have HCl, it will break is H plus or Cl minus. This is positive center and this is negative center, and positive center and negative center are separated by some distance. So this molecule of HCl molecule, this is called, what is HCl? This is a molecule. This molecule is called polar molecule because it is going to form डाइपोल। क्या बना रहा, डाइपोल। सो दिस इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, पोलर मॉलिक्यूल। सो दोज मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म डाइपोल एंड देयर पॉजिटिव सेंटर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव सेंटर। जितना भी प्लस चार्ज है एक जगह पर रहेगा, जितना भी माइनस चार्ज है वो दूसरी जगह पर रहेगा। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड polar molecules. In polar molecules, if you see, in every polar molecules there will be a dipole moment. देखिए प्रत्येक पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या निकाला जा सकता है, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर पॉजिटिव सेंटर आर सेपरेटेड बाय नेगेटिव सेंटर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 12, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वी कैन फाइंड आउट, क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट देयर मोमेंटम। सो एवरी पोलर मॉलिक्यूल हैव इंडिविजुअल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम। एवरी पोलर मॉलिक्यूल हैव इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंटम। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स का आप क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल निकाल सकते हैं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं क्योंकि वो क्या बनाएगा, डाइपोल बनाएगा। क्लियर। नाउ 3 क्वेश्चन आर वेरी इंपोर्टेंट देयर। नंबर फर्स्ट, what is polar molecule? Polar molecules are those molecules which can form electric dipole. Their positive center are separated by some distance from negative center. Is it clear? Number second, what is the dipole moment of, is the dipole moment of polar molecule 0? No, they have some dipole moment because they form dipole. Yes or number second, non-polar molecules, non-polar मॉलिक्यूल्स। अब देखिए नॉन पोलर सबको पता है भाई, नॉन पोलर, अगर पोलर क्या है, जो डाइपोल बनाते हैं जिनका कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, नॉन पोलर क्या होंगे, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट फॉर्म डाइपोल, जो क्या नहीं बनाते डाइपोल, तभी तो है नॉन पोल, डाइपोल नहीं बनाते। नॉन पोल मींस दे विल नॉट फॉर्म डाइपोल, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। देयर नेगेटिव सेंटर एंड पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव चार्ज पोर्शन एंड नेगेटिव चार्ज पोर्शन आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड व्हाट, नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल H2 there are 2 H and they are bounded by sharing of bond, so they will not break H plus H minus. Yes or no? There is no plus and minus because they form a covalent bond between them. So that means their positive center and negative center remain same position. So their dipole moment Q into 2L. So P equal to, what will be dipole moment? 0. Yes or no? So those molecules which do not form dipole and their positive and negative, they will not form dipole. They will made up of covalent bonds by sharing of electron, and polar one will be made by ionic. Clear? So their positive and negative center are coincide, and their dipole moment will come to 0. Their dipole moment will come to 0. Is it clear? But if you will take these, suppose this is a positive plate and this is a negative plate. If you will take, अगर आप क्या करेंगे, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनके पीस को रख दें, मान लो दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मटीरियल। ये कैसा मटीरियल है जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर आर कोइंसाइड, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर आर कोइंसाइड, बट व्हेन यू विल कीप इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे क्या होगा, देखिए अभी तक इनके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर अगर आप देखेंगे तो इस पीस के अंदर अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर देखें, आउटसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो इसके मॉलिक्यूल इस तरह से होंगे। यस और नो? प्लस एंड माइनस आर कोइंसाइड बिकॉज इट इज नॉन पोलर,
polar. Getting? Now when you will keep in electric field, जब आप इसे कहाँ रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो प्लस और माइनस दो प्लेट आ जाएंगी, तो मॉलिक्यूल का माइनस वाला पोर्शन किस तरफ आ जाएगा, प्लस की ओर, और प्लस वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस की ओर. दे ऑल आर कन्वर्टेड लाइक दिस, सो दे ऑल आर नाउ फॉर्म व्हाट, डाइपोल. देखिए ये अब सब क्या बनाने लग जाते हैं, डाइपोल. प्लस वाला माइनस की ओर खींच जाएगा, माइनस वाला प्लस की ओर. ये देखिए प्लस माइनस वाला प्लस की ओर खींचेगा, प्लस वाला माइनस की ओर. सो ऑल मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू डाइपोल. नाउ earlier their dipole moment was 0 because plus and minus are at same point. 12 will come to 0. Now their plus and minus are not at same point, they are separated by some distance, so there will be P will not equal to 0, dipole moment will not 0. So such type of dipole moment is called induced dipole moment, पैदा किया गया dipole moment. So non-polar molecules, when you will keep non-polar molecules in external electric field, जब आप non-polar molecules को external electric field में रखेंगे, so they form dipole and then there will be some dipole moment of their molecules. Such dipole moment is called induced dipole moment, पैदा किया गया dipole moment. But without external field, what will be their dipole moment? Without external field, their dipole moment will be 0. Their dipole moment will be 0. Now what is the physical significance of dipole? डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए. डायपोल्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आयनिक. देखिए आपको मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल H प्लस Cl माइनस, ये ऑलरेडी क्या बना रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं. H2 ये डायपोल नहीं बना रहे हैं, बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल फॉर्म डायपोल. सो इनकी स्टडी करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूज किया जाता है. इट्स सिग्निफिकेंट यूज, इट इज यूज्ड टू find electric field due to ionic compound and ionic substances. So it is play important role for the study of electric field of ionic solution. तो किसका डायपोल बना है, किसका डायपोल नहीं बना है, इसको चेक करने में इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज किया जाता है. किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज किया जाता है. इज इट क्लियर, यस और नो, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ ए पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड डायपोल इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मोमेंट and direction of external electric field will be same. The angle between them will come to 0 degree. So if there is a question पूछ दिया बोर्ड ने, what is the angle between induced dipole moment of non-polar molecule, what is the angle between induced dipole moment of non-polar molecule and external electric field? It will be 0 because they both are in same direction. These both will be in same direction. So their angle between them will come to 0. So there are two type of molecule. Polar, already dipole will be there. They have some dipole moment. Their positive and negative centers are not coincide. Non-polar, their positive and negative centers are coincide. They will not form ionic bonds. They will form covalent bond. But when you will keep them in external electric field, they form dipole. In the direction of electric field, there will be a dipole moment. This is called induced dipole moment. Is it clear? So this is important. Now, next point. There are 2 points for dipole. One is axial axis line. Number second is equatorial line. Equatorial line. There are 2 points for dipole. आप इनकी स्टडी बहुत ज्यादा करेंगे. Axial line, axial line and equatorial line. Axial line and equatorial line. These two you will study. Equatorial line. ठीक है, equatorial line and axial line. What is axial line and what is equatorial line? Now, what is dipole? When two equal and opposite charges are kept at a small distance to L, this is called electric dipole. This is called electric dipole. What is axial line? A line which join the center of two dipole and extended any one side. ये लाइन पूरी क्या है, एक्सियल लाइन. ये कैसी लाइन है,
axial line. What is axial line? A line which join the center of two dipole and extended any one side of dipole. किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली वो लाइन जो किसी भी तरफ एक्सटेंड की जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल लाइन. नाउ व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? ए लाइन which pass from the center. This is, suppose this is the center of dipole. A line which pass from the center of dipole and perpendicular to axial. This is called equatorial line. क्या बोलते हैं इसे? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं. व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? ए लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्सियल लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. दैट इज कॉल्ड equatorial line. So it is clear what is axial and what is equatorial. It will not come in your competitive and your board exam, but it should be clear what is axial line and what is equatorial line. What is axial line and what is equatorial line. Now suppose which type of question you will get. Suppose we will discuss a question here. Now suppose this is 2 axis dimensions. There are two in z axis. There are two charge particle. For example, in question there will be given two charge particle in z axis. This is z axis plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb at 0, 0, minus 15 meter, 0, 0, plus 15 centimeter. ये भी सेंटीमीटर कर लेते हैं, सेंटीमीटर. Find electric dipole moment. Now see, here are two charges. वन इज प्लस 5, ये y एक्सिस में भी हो सकते थे और x एक्सिस में भी हो सकते हैं, मैंने z में लिए हैं. तो प्लस 5 और माइनस 5. प्लस 5 की पोजीशन है 0, 0 प्लस 15, इसकी है 0, 0 माइनस 15. हमने क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट. क्या होता है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच की डिस्टेंस 12. दिस होल इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन देम. दिस होल इज डिस्टेंस बिटवीन देम. यस और नो? नाउ सो वी विल फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू व्हाट इज द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी. both are 5 5, so we will put only 5. Sign are not required, only magnitude into distance between them. देखिए this is 0, 0, this is 15, this is also 15. This is coming minus because it is in minus z axis, it is in plus z axis. So total कितनी डिस्टेंस होगी between them? 30 सेंटीमीटर. कितने होगी? 30 सेंटीमीटर. यस और नो? 12 होल डिस्टेंस बिटवीन देम कहते हैं ना, पूरी है 12, पूरा डिस्टेंस को 12 बोलता है. एल नहीं है ये पूरी 12 है. कितना आ गया? 5 इंटू 30 इंटू 10 का माइनस 2. कितना आ गया? 150 इंटू 10 का माइनस 2, 1.5. क्या आ गया? कूलम इंटू मीटर. Coulomb into meter. This is the answer. So this type of questions are in NCERT. Board will ask this type of question from you. Clear? Now, suppose you will get this. Suppose the next question is find total dipole moment of given diagram. Find total dipole moment of the given diagram. What is the diagram? See here. Now this is given. And you are tasked to find out the total dipole moment of the system. Now if you will see clear here, there are two dipole. कितने डायपोल है यहाँ पर? 2 हैं. देखिए एक ये है और एक ये है, तो इनका डायपोल मोमेंट होगा दोनों का ऑब्वियसली सर. देखिए डायपोल मोमेंट कहां से कहां की ओर होता है? -2 पॉजिटिव, दिस इज P1, -2 पॉजिटिव, दिस इज P2. बोथ आर इक्वल. That means we can write P1 equal to P2. Sir, P1, why P1 equal to P2? Charges are same, distance is same. Charges are same, distance is same. So momentum P equal to charge into distance. So the P1 and P2 will be same. Now, here one dipole is coming from left to right P1. One is going from up to bottom P2. Angle between them is 90. Now dipole is which type of quantity? Dipole is vector.
Dipole is vector. So the resultant of any two vector will be passed from their center. So this will be the P. And how you find out resultant? Resultant vector P square equal to P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta. The resultant of any two vector will be find out by parallelogram law of vector addition. So resultant of these two are vector now. We know that dipole moment is vector quantity because its direction is -2 plus -2 plus. So their resultant will pass from their center and it will find out by this angle, this formula. So now put P1 and P2 are same. So what we will get? P square equal to P1 square plus P1 square. P2 equal to P1 रख ले plus 2P1 into P1 cos 90. What is the angle between them? 90. Cos 90 is 0. 2P1 square plus 0. So P equal to under root 2P1 square. So what will be the answer? 2P1. Answer is 2P1. What is the answer? 2P1. Now in second हो सकता है वो आपसे क्या पूछे? Find this angle. Maybe this angle or maybe this angle. कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सेस और मे बी इन वाई एक्सेस. हो सकता है वो आपसे पूछे कि द रिजल्टेंट मोमेंटम हाउ मच एंगल विल फॉर्म बाय द रिजल्टेंट मोमेंटम विथ वाई एक्सेस और मे बी विथ एक्स एक्सेस. तो क्या करेंगे आप? डॉट 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 कर लेंगे. यहाँ डॉट डॉट करेंगे ये P1 हो गया, यहाँ डॉट डॉट करेंगे तो P2 हो गया, ये P2 है तो ये भी P2 है, ये P1 है तो ये भी P1 है. निकाल लीजिए. मान लीजिए इससे निकाल लेते हैं आप. क्या निकाल दीजिए? tan थीटा. यहाँ से tan थीटा. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस P2 अपॉन P1. tan थीटा. P1 P2 आर सेम. P1 अपॉन P1. P1 अपॉन P1 because P2 इक्वल टू P1 कैंसिल आउट. tan थीटा इक्वल टू 1. थीटा इक्वल टू where will the value of theta 1 at 45 degree. So angle is coming, this angle is coming 45, totally 90. This is also come 45. Clear? So this is very important question, this type of question. Yes or no? Let's see. एक और करते हैं इसी का. चलिए एक और प्रैक्टिस के लिए करते हैं. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू विल गेट दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए दिस P1 P2 60 डिग्री पूछा है. इफ P1 इक्वल टू P2 फाइंड टोटल डाइपोल मोमेंट. दिस इज द क्वेश्चन. सिंपल है. हमने क्या निकालना है? P1 इक्वल टू P2 है और हमने निकालना है फाइंड टोटल डाइपोल मोमेंट. दिस इज P1. P1 इज इन दिस डायरेक्शन. दैट मीन्स दिस इज P1 एंड दिस इज P2 and this is P1 and angle between them is 60. Their resultant will pass from their center. So what is the resultant? P square equal to P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta. This is the equation to find out the resultant of two vectors by parallelogram law. So P square will be P1 square plus P1 square because P2 and P1 are equal plus 2P1 into P1 cos 60 degree. Cos 60 is, अब तो एंगल चेंज हो सकता है बस. 2P1 स्क्वायर cos 60 is 1/2. अलिए भी हम इसका कैंसिल आउट. कितना आ गया? 1P1 2P1 3P1 स्क्वायर. तो P1 आ गया अंडर रूट 3P1 स्क्वायर अंडर रूट 3P1. दिस इज द आंसर. क्लियर? So this is very easy questions. So you have to go through it. This is of dipole question. Yes. Now, what is our next task? Our next task to find electric field of electric dipole. Electric field of electric dipole. Now, first of all, see here. If you will, now what is our task? हमारा टास्क है हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इफ यू विल सी ए डाइपोल देयर आर टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है. टोटल चार्ज q टोटल क्या होगा? माइनस q प्लस q. टोटल विल कम 0. इसे कैपिटल से निकाल लेते हैं. टोटल विल कम 0. टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज 0 but its total field is not 0. Total charge of dipole is 0 but its total electric field is not 0. Sir why? देखिए addition of charges is algebraic.
Addition of charges is algebraic and addition of electric fields are done by superposition principle because electric field is a vector quantity, charge is scalar, their addition will be algebraic. Now if you will find out the electric field due to dipole, suppose here you want to find out its electric field at midpoint. Due to plus electric field will be outward E1, due to minus electric field will be towards it only E2. So E1 and E2 will come in same direction. Total E will be not zero, E1 plus E2 because they are coming in same direction and these are vector quantity. So the total charge of electric dipole is zero, but its total field is not zero. देखिए क्यों नहीं? प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, माइनस के कारण टुवर्ड्स इट होगा. तो किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो दोनों क्या आ रहा है? E1 प्लस E2 आएगा या फिर E1 माइनस E2 आएगा. इट विल नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा. क्या होगा चेक करते हैं फिर कितना होता है और कैसे निकाला जाता है चेक करते. चलिए नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट. नंबर फर्स्ट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर निकालना है? एट इट्स एक्सियल पॉइंट. अभी मैंने एक्सियल पॉइंट डिस्कस किया. द पॉइंट which is on the line which join the center of two dipole and extended from any one side. दोनों के सेंटर को जोड़ने वाले और किसी भी एक तरफ को बढ़ के जो निकलेगी उस लाइन में किसी भी पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे. लेट्स सी, देखते हैं पहले. Suppose this is electric dipole, this is minus q and this is plus q, separated by distance 2l. Now what is axial line? This line is called axial line, I think. Yes or no? This line is called axial line. On this line there is an axial point. Suppose this is the point P where we want to find out electric field. We want to find out electric field due to this dipole at point P. Let the name of this dipole is AB. Electric field due to electric dipole at axial point. This line is called axial line. This line is called axial line and there is a point. This point is called axial point. Obviously the point on axial line is called axial point. Now our task to find out electric field at this axial point due to this dipole. Let's चलिए शुरू करते हैं. Now this charge is minus q, this is plus q. Both are of equal charges. Both are of equal charges. तो कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है. Its center is O. This is center O. This distance is L. This is also L. Let the distance of that point from center is R. From where you will consider the distance? From center. ना यहां से मान सकते हैं यहां से क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो कहां से मान लिया? सेंटर से. सो नाउ फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज द डिस्टेंस विल बी, ये पूरी कितनी है? R. ये कितना है? L. तो यहां से कितना बचा? R माइनस L. फ्रॉम हियर R प्लस L बचेगा. दिस इज R. फ्रॉम हियर टू हियर R. दिस इज L. सो कितना बचा? R प्लस L और यहां क्या करेंगे? R माइनस L. इज इट क्लियर? नाउ चलिए डिस्टेंस कर ले. आपने क्या ध्यान रखना है? जब भी आप एक्सियल पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे निकालें डिस्टेंस यू विल कंसीडर फ्रॉम सेंटर. कहां से मानेंगे डिस्टेंस? हमेशा सेंटर से. बिकॉज ये भी प्लस क्यू है और भी प्लस क्यू, ना यहां से मान सकते हैं आप ना यहां से. तो क्या करना है? हमेशा आपने सेंटर से माना है क्योंकि दोनों की हैसियत क्या है? एक है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में, वैल्यू तो दोनों की सेम है. तो कहां से मान लिया? उनके सेंटर से. सो ये हो जाएगा R माइनस L और ये हो जाएगा R प्लस L. नाउ how many electric field will be there? How many electric field will be there at point P? How many electric field will be here? At point P, 2 electric field. One due to negative charge. Number second due to positive charge. Obviously, there will be 2 electric field at point P. One due to positive charge and one due to negative charge. Yes or no? 2 charges are there, so 2 field will be there. We know, हम जानते हैं E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the formula of electric field. I think this is the formula for electric field. E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. This is the formula due to its point charge. These are like point charges ना. ये भी एक पॉइंट चार्ज है, अगर इसे छोड़ दूं तो ये पॉइंट चार्ज है और इसे छोड़ दूं तो ये एक पॉइंट चार्ज है. तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square.
दिस इज फॉर वैक्यूम, अगर डाइलेक्ट्रिक लूंगा तो क्या आएगा साथ में, के आएगा। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E1 कितना होगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए, तो कितना हो गया E1 हो गया 1/4πε0 क्यों ही है, साइन तो रखते नहीं है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी वेक्टर R कितना है, R मींस डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज हाउ मच R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ which type of charge it is, which type of charge it is negative, and due to negative charge electric field will be towards that charge only। so ये P है ये A है, तो कहां से कहां क्यों होगा P to A, P to A होगा बिकॉज उसी की तरफ को होगा, ड्यू टू नेगेटिव द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स इट ओनली। नाउ नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा E2 1/4πε0 Q फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस इज R माइनस L, R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड मींस लाइक दिस E2, तो कहां से कहां की होगा P to P होगा, B से कहां की ओर होगा P की ओर, पहला वाला कहां सा P से A की ओर, P to A B to, is it clear? These are two electric field yes at point P। now come to the point P, अब point P पर आ जाइए आप, देखिए this was the point P, this is coming E2 and this is coming E1, E1 and E2 are just अपोजिट, एक राइट को जा रहा था एक कहां को जा रहा है लेफ्ट को जा रहा है, जो राइट को जाता मैंने आपको कहा था जो राइट को जा रहा है कौन सा एक्सिस में जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, और जो यहां को जा रहा है कौन सा एक्सिस में जा रहा है माइनस एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब जो राइट को जा रहा है वो क्या होगा प्लस होगा, और जो लेफ्ट को आ रहा है वो क्या होगा माइनस, इनवर्ट वाला माइनस होता है आउटवर्ड वाला प्लस होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा E1 प्लस कौन है प्लस वाला है E2, तो प्लस E2 हो गया माइनस E1 किस में आएगा माइनस में, E1 माइनस एक्सेस में जा रहा है E2 प्लस एक्सेस में जा रहा है, तो वो प्लस हो गया वो माइनस हो गया, तो कितना आएगा E2 माइनस E1 रख दीजिए इक्वल टू रखिए 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q R प्लस L का होल स्क्वायर। वैसे भी देखा तो ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट वाले हमेशा माइनस होते हैं, तो E2 माइनस E1। अगर ऐसा नहीं पता है तो थॉट क्या है प्लस एक्सेस में जाने वाला क्या हो गया बाहर को जा रहा प्लस में जा रहा प्लस हो गया, माइनस में जा रहा माइनस हो गया, E2 माइनस E1 तो E2 प्लस हो गया E1 क्या हो गया माइनस हो गया, क्लियर E2 प्लस हो गया और E2 माइनस। नाउ सॉल्व इट, बस अब सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स है देखिए कैसे करेंगे। टोटली कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 Q इज कॉमन, क्या बचा अंदर 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर बचा। चलिए सॉल्व कर लीजिए इक्वल टू 1/4πε0 Q कॉमन, ना है यहां पर क्या आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी आ रहा ना, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनका वो स्क्वायर है, क्लियर है, ये एलसीएम हो गया। ये यहां मल्टीप्लाई होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये यहां होगा माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, सही है। देखिए ना a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, ये एलसीएम हो गया। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहां मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना आता हो खुद। चलिए अब ओपन कर दीजिए इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 Q, एलसीएम हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओपन कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ये आ गया एक ब्रैकेट में, माइनस इसको भी खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, ऐसे तो खोलेंगे। चलिए इक्वल टू कितना हो गया, 1/4πε0 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, साइन चेंज कर दीजिए अंदर, r स्क्वायर माइनस माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होंगे, प्लस 2lr, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो, क्या क्या कैंसिल हुआ देखिए, प्लस है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों प्लस हो गए, कोई बात नहीं। चलिए तो कितना आ गया, E इक्वल टू आ गया 1/4πε0q इंटू 4lr, 2lr प्लस 2lr 4lr, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, आया भाई। चलिए अब सॉल्व कीजिए, E इक्वल टू 1/4πε0q, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2lr, 2 4 हो गया, अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/4πε 2ql, 2ql हमने पता है डायपोल मोमेंट P इक्वल टू 2ql को P बोलते हैं, तो क्या आ गया 2p, ये बचा 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई देखिए 2ql, 2 एक q और एक l की जगह पर क्या रख दिया, p रख दिया, ये 2 बच गया 2p और ये r बच गया। यस और नो, नाउ डिस्टेंस बिटवीन, वी नो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डायपोल l वेरी वेरी लेस देन r, r से बहुत छोटा होगा, बिकॉज इट इज ए वेरी, क्या बोला जाता है डायपोल क्या है, डायपोल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस टू l, तो l बहुत ही स्मॉल हुआ, 2l बहुत स्मॉल है तो l और स्मॉल हुआ, l इज लेस देन r, सो l स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल माना जाएगा 0। सर कैसे, मान लिया l है 0.00001, इसे कंसीडर कर सकते हैं, l स्क्वायर कितना हुआ 0.12345, 12345678910, ये होगा, तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 0। तो अगर l बहुत, अगर कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है, फॉर एग्जांपल l है 0.0002, ये तो कंसीडर हो सकता है, l स्क्वायर कितना हुआ 0.00002, 1 2 3 4 5 6 2 होगा, ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा क्यूब और 0, तो सारे हायर टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, सो E हो जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, l स्क्वायर 0 हो गया, तो कितना आ गया 1/4πε0 2pr अपॉन r की पावर 4, 2 2 4 कैंसिल, कितना आ गया 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। बहुत आसान है, डेरिवेशन इज वेरी वेरी इजी, बस चीजें ध्यान रखनी है, रटना नहीं है उसको कि माइनस है तो माइनस रख दिया, प्लस है तो प्लस रख, नहीं, चीज को समझना है, जो रूल्स फॉलो होते हैं वही रूल फॉलो करने हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज कमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज कमिंग इक्वल टू, कितना आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज कमिंग इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि वेक्टर है, तो क्या लिखेंगे ई वेक्टर 1/4πε0 2p, p भी कैसे क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर मिल गया ना यहाँ पर, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए r क्यूब, दिस इज द आंसर, वेक्टर फॉर्म। सर r कैप क्यों नहीं लिखा, मैंने क्या बोला, r कप्पा तब लिखेंगे जब ऊपर कोई वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर p ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, ये भी वेक्टर हो गया, लेफ्ट में भी लगा दे रहा है। r कैप कब लगाते थे, जब यहाँ वेक्टर नहीं होता है, अगर यहाँ केवल 2 होता तो तब क्या लगाते थे, r कैप लगाते थे, ऊपर कोई वेक्टर नहीं हो तब नीचे का कप्पा लगता है, अदरवाइज वहीं ऊपर वेक्टर लगता है। इज इट क्लियर? यस और नो? सो नाउ वेक्टर ई कमिंग प्लस 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, क्या साइन आ रहा, प्लस आ रहा, प्लस आ रहा ना यहाँ पर, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ एंगल बिटवीन E and P vector equal to 0 degree, they
आर इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ ये दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E on axial point will be how much, 0 degree. They will be in same direction. They will be in same. अगर P राइट को है तो E भी राइट को होगा, P लेफ्ट को है तो E भी लेफ्ट को होगा। Is it clear? Now, next point. Suppose you want to draw the graph between E and R. E and R are just E inversely depend on 1 upon R cube. They are just inversely dependency. So that means it will be a curved graph. When R equal to infinity, then E will become to 0. Is it clear? Earlier also we have discussed about. Now if your graph is between E and 1 upon R cube, then it will be a straight line because they are directly depend on each other. Clear? Yes or no? Right? Clear? So this is the answer. और ग्राफ मैंने इसका ड्रॉ कराया इलेक्ट्रिक डायपोल का। अगर ग्राफ वाला आपने नहीं देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ जिसमें मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इलेक्ट्रिक पूरे डायपोल को लेकर ग्राफ प्लस और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस चारों कोऑर्डिनेट में ग्राफ ड्रॉ, तो प्लीज उस वीडियो को पहले जाके देखिए, तब आप समझेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इट्स axial point. At its axial point, many points are very important here. Total charge of dipole will be 0, but total field is not 0 due to a point charge. Electric point charge, due to point charge electric field E was 1 upon 4 pi epsilon Q upon R square. It depend on 1 upon R square. Due to dipole depend on 1 upon R cube. This is the basic differences. Getting or not? Yes? Yes or no? So see it.